morning students, welcome to a new class or new session. Okay, so this is our second video which is to be uploaded for IWD. Okay, in the first video we are discussing about what is internet, what is the history of internet, what are the different requires of internet. Okay. So that means when the internet is created, when the internet is developed, who is responsible for developing the internet? Okay, and what are the basic requirements of internet? Because without that thing, you cannot start the internet, you cannot use a internet. So that is discussed. In this video, we are discussing about the features of internet. What are the properties of internet? What are the characteristics of internet? After discussing the features of internet, we will discuss the understanding internet. मतलब तुम इंटरनेट मतलब क्या सोचते हो? इंटरनेट मतलब क्या है? Okay? Then the basic terminologies or basic components of internet we will be discussing. These three things we will discuss in this video. One is your features of internet, second is your understanding internet, and third is your basic terminology or terms used in the internet. Okay? So features of internet. What are the features? So features मतलब property. Features मतलब your characteristics. Okay. What are the different features of internet? So internet is reliable. Reliable मतलब comfortable. Through internet we can connect to the people through the worldwide. Okay. Through the internet we can connect to the people through the worldwide. Okay, so reliable. Okay, then connected. Okay, through internet we can connect it to each and every person. Through the internet we can connect it to each and every person present in the worldwide. Through internet we can gather information. Okay, gather information about all things. तुम्हें जिसके बारे में पता करना है तुम उसके बारे में पता कर सकते हो. तुमने सुने शायद एक मूवी देखा होगा ए वेडनेसडे. सो ए वेडनेसडे मूवी इज वेयर ए नॉर्मल पीपल, ए कॉमन पीपल मेक ए बम. वो बम बना देता है. ओके, लेकिन वो बम बनाने का टेक्नोलॉजी कहाँ से सीखता है? ना इंटरनेट से. मतलब गेदर इंफॉर्मेशन. मैं नहीं बोल रहा हूँ कि बम बना दो स्टूडेंट्स, बस एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ. मतलब बम बनाना कितना मुश्किल काम अगर किसी ने बना लिया तो इजी था. सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना, सॉफ्टवेयर यूज करना, देन और कुछ भी हम कर सकते हैं. जैसे और एक एग्जांपल भी दे रहा हूँ स्टूडेंट्स. जो तुम्हारा गब्बर इज बैक मूवी में जब एक इमरजेंसी डिलीवर होने था तो वो भी गूगल में डिलीवर देख के वो भी उसने कर लिया. दैट मीन्स मेरे कहने का मतलब ये है कि all things should be available in the internet. You can just use it. All things is available in the internet. You can just use the information and do the work. Gather the information. You can get the previous year question. You can get the simple question. You can get the online class. जैसे कि अभी हम कर रहे हैं ना online class. Okay. Then you can download the videos. जैसे कि हम अभी YouTube में वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तुम डाउनलोड करके घर में बैठ के देख सकते हो. तुम्हारा कोई स्टूडेंट जो कि इधर नहीं रहता, वो अदर स्टेट में रहता है क्योंकि अभी छुट्टी चल रही है लॉकडाउन की वजह से, तो वो वहाँ बैठा है. तो अगर वो वहाँ बैठा है तो वो कैसे हमारे क्लासेस करेगा? तो ये टाइम में भी ये जो वीडियो में अपलोड किया है वो डाउनलोड करके क्लास कर सकता है. ऑनलाइन एग्जामिनेशन, ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन इंटरव्यू, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, also these are the internet features. मतलब everything is done by the user. और इससे पहले जब हम चिट्ठी भेजते थे, मैसेज, इससे पहले जब हम मैसेज भेजते थे, चिट्ठी भेजते थे, लेटर लिखते थे, लेटर लिख के उसे पोस्ट करते थे. 2-4 दिन लगता था पोस्ट करने के लिए. लेकिन नो सर, अभी ऐसा नहीं. जस्ट एक जीमेल जाओ, जीमेल में एक अकाउंट ओपन करो, अकाउंट ओपन करके साइन इन करो, साइन इन करके तुम्हारा यूजर आईडी पासवर्ड दो. Then you just go to a compose mail. Okay, compose mail में जाके recipient address टाइप करो, मैसेज टाइप करो, send. Immediately within a fraction of second, the mail is sent, the message is sent to the
other user, to the recipient user. Okay, so you can send the message, you can upload the वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हो. ओके, जो आजकल जितने भी सब मीटिंग हो रहे हैं कलेक्टर सब कलेक्टर का सब ऑल आर डन थ्रू द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. ओके, ऑल आर डन थ्रू द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. ओके, यू कैन चैट विथ योर फ्रेंड्स, यू कैन शेयर फोटो बाय यूजिंग सोशल नेटवर्किंग साइट. अभी जो सोशल नेटवर्किंग साइट है व्हाट्सएप, देन योर फेसबुक, उसमें तुम मैसेज भेज सकते हो, फोटो भेज सकते हो, क्वेश्चन पेपर भेज सकते हो, आंसर शीट भेज सकते हो, डाउट भेज सकते हो, एवरीथिंग क्या चाहिए बोलो तुम्हें, ऑल आर डन थ्रू द इंटरनेट. टिकट बुकिंग करना चाहते हो घर में बैठो ऑनलाइन टिकट बुकिंग करो. गैस बुकिंग करना चाहते हो ऑनलाइन बैठ के गैस बुकिंग करो. ई कॉमर्स वेबसाइट ओपन करो, फ्लिपकार्ट अमेजन शॉप करो, ग्रोसरी, इलेक्ट्रॉनिक, वेजिटेबल्स भी होता है. ओके, कहीं पे तो ऑल आर ऑर्डर बाय द इंटरनेट. ई शॉपिंग, ई कॉमर्स, ई कार. ओके, ऑनलाइन बिलिंग, इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस बुक, ऑनलाइन बिलिंग, ऑनलाइन मनी ट्रांसफर, बैंक टू बैंक अगर मनी ट्रांसफर करना चाहते हो वो भी ऑनलाइन. और बहुत सारे जो ऐप्स है गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, थ्रू व्हिच यू कैन ट्रांसफर द मनी ऑनलाइन. ऑनलाइन मनी ट्रांसफर, ऑनलाइन मनी ट्रांसफर. So everything is done through the internet. तो एक जस्ट एक वर्ड में बोलना चाहता हूँ स्टूडेंट्स. तो इंटरनेट इज ए मीडिएटर. इंटरनेट इज ए करंट मीडिएटर बिटवीन द पीपुल्स वर्ल्ड वाइड. ओके, अभी के जमाने में इंटरनेट पॉपुलरली ग्रो हो रहा है, पॉपुलरली डेवलप हो रहा है और पॉपुलरली यूज हो रहा है. तो ऑल थिंग आर डन बाय द इंटरनेट. अगर मैं इंटरनेट के सारे फीचर्स के बारे में बताना चाहूँ तो पूरा दिन चला जाएगा, लेकिन इंटरनेट का फीचर्स खत्म नहीं होगा. इसका मतलब इंटरनेट का यूजर्स खत्म नहीं होगा. ओके, एवरीथिंग डन बाय द इंटरनेट. जो भी तुम करना चाहते हो वो सब चीज तुम्हारा इंटरनेट के थ्रू से हो जाएगा. ये मेरे कहने का मतलब है और कुछ नहीं. ओके, ये मेरे कहने का मतलब है. ओके, ठीक है. तो ऑल आर द फीचर्स ऑफ इंटरनेट. लेकिन अभी तुम्हें बोलना है सर इंटरनेट तो ये तो सर सबको मालूम है. एक अगर स्टैंडर्ड 2 स्टूडेंट को भी हम बुलाएंगे ना तो भी वो बोल देगा कि सर ये सब हम इंटरनेट में कर सकते हैं. लेकिन व्हाट इज अंडरस्टैंडिंग इंटरनेट. तो तुम सोचते क्या हो इंटरनेट के बारे में. इंटरनेट मतलब क्या है. ओके, इंटरनेट मतलब ऐसा एक डिवाइस नहीं कि जो कनेक्ट कर दो इंटरनेट आ गया. इंटरनेट को टर्म को समझना पड़ेगा. इंटरनेट इज इंटरनेशनल नेटवर्किंग. इट कनेक्ट द पीपुल्स वर्ल्ड वाइड. इट contains some web terminologies, web words through which the internet will be fulfilled. Okay, so जैसे कि तुम्हें एक डिवाइस चाहिए ना. विदाउट डिवाइस यू कैन नॉट कनेक्ट टू द इंटरनेट. तो डिवाइस हो गया. तो जिस डिवाइस में तुम बैठ कर इंटरनेट यूज करना चाहते हो दैट इज योर क्लाइंट मशीन. दैट इज योर क्लाइंट मशीन. ओके, देन तुमने आईएसपी से एक इंटरनेट कनेक्शन ले लिया है. देन तुमने एक ब्राउजर भी इंस्टॉल कर लिया. ये सब हमने लास्ट क्लास डिस्कस कर लिया था. क्योंकि टू यूज द इंटरनेट वी रिक्वायर ए सिस्टम, वी रिक्वायर द आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, मॉडेम, जिसके बारे में डिटेल एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में. देन एक ब्राउजर इज द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मीडिएटर बिटवीन द यूजर एंड द सर्वर. सो that machine which send the request, that is called client. That means the system you are using, that is called client machine, client. So another system is there. Which system is served as a server. Means you send the request to that machine and that machine accept the request, process it and send the result as a response. तो जो अंडरस्टैंडिंग इंटरनेट में तुम्हें पता चलना चाहिए कि इंटरनेट कैसे काम करता है. व्हेन यू ओपन द सिस्टम, ओपन द ब्राउजर, टाइप द वेबसाइट के डिस्कस करो, टाइप समथिंग, तो दैट समथिंग इज रिक्वेस्टेड टू द सर्वर.
and that process it where, and when the result is coming to the client, and that is called respond. So it is called your client server architecture. Client server architecture, or it is known as the request response architecture. Client server architecture or request response architecture. ओके, मीन्स क्लाइंट से रिक्वेस्ट गया, सर्वर से रेस्पॉन्ड आया। तो इस तरह ही होता है तुम्हारा इंटरनेट का काम। ओके, लेकिन इंटरनेट में काम होने के लिए मुझे एक वेब पेज चाहिए। ओके, व्हाट इज वेब पेज? अभी एक टर्म आया, क्योंकि जो रिक्वेस्ट पेज जाता है, रिक्वेस्ट पेज, तो दैट इज कॉल्ड वेब पेज, और जो रेस्पॉन्ड पेज आता है दैट इज आल्सो ए वेब पेज। सो यू आस्क मी व्हाट इज वेब पेज? Web page means the electronic pages or the e-pages, the pages that are moved through the air. Web, that is called your e-page, electronic page or web page. When the web page are collected, when the collection of web page is created, that is called website. Okay, ये डायग्राम तो ऑलरेडी तुम्हारे नोट में है, करने की जरूरत नहीं, जस्ट एनालाइज। Okay, when the web pages are connected to each other, that is called your website. Okay, so तुम्हें पता चलना चाहिए कि इंटरनेट काम कैसे करता है। सर, इंटरनेट काम करने के लिए मुझे एक आर्किटेक्चर चाहिए, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। देन आई रिक्वायर ए वेब पेज। वेब पेज, वेब पेजेस आर योर इलेक्ट्रॉनिक पेजेस और ई पेजेस। When the web pages are connected, that is called website. That is called website. Collection of web page. Collection of web page is your website. तो जब बहुत सारे पेजेस कनेक्ट हो गए, कलेक्ट हो गए, दैट इज कॉल्ड वेबसाइट। तुम्हारा नोटबुक, एक सिंगल पेज को हम पेज बोलते हैं। जब सारे पेजेस तुम्हारे कनेक्ट हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड योर website, notebook, like that, website. So when you open the browser, when you click on the browser, your web page is open. Your web page is open, and that web page is called your home page. That is called your home page. When you collect a web browser, just click on a web browser and a page is open, that page is called your home page. Home page is always the first page of the website. Okay, home page is the first page of the website. जब भी कोई वेबसाइट ओपन करो, जो पहला पेज ओपन होता है, that first page is known as your home page. Okay, तो वेब पेज ओपन हो गया। उस वेब पेज में तुम्हारा एक एड्रेस बार होता है। उस वेब पेज में तुम्हारा एक एड्रेस बार होता है। दिस इज योर एड्रेस बार। हियर यू राइट ए वेब एड्रेस। हियर यू राइट ए वेब एड्रेस। तुम बोलोगे सर व्हाट इज वेब एड्रेस? लाइक योर एड्रेस। जब मैं तुम्हारे बारे में कुछ इंफॉर्मेशन जानना चाहता हूं, तो मुझे तुम्हारा एड्रेस के बारे में पता होना चाहिए या नहीं? यस, अगर जैसे तुम्हारे वेब एड्रेस के बारे में पता है, वैसे जब तुम एक वेबसाइट ओपन करना चाहते हो तो उसका एड्रेस देना पड़ेगा। वेब है इसलिए दैट इज कॉल्ड वेब एड्रेस। द एड्रेस थ्रू व्हिच यू कनेक्ट टू ए वेबसाइट, दैट इज कॉल्ड वेब एड्रेस। द साइट थ्रू व्हिच यू कनेक्ट टू ए the address through which you connect a website, that is called web address. So you must write to a web address. Here you write a web address. Okay, so when you work with the internet, you know about the browser, you know about the home page, you know about the web page, you know about the website, then you know about the address bar. So here we are writing the address. तो बोलोगे सर मुझे एड्रेस मालूम नहीं। अगर एड्रेस मालूम नहीं तो हम गूगल सर्च में जा सकते हैं, क्योंकि हमने फीचर्स ऑफ इंटरनेट में पढ़ा है कि देयर इज अ सर्च इंजन व्हिच इज यूज्ड टू गिव द इंफॉर्मेशन, व्हिच इज यूज्ड टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन, टू सर्च द इंफॉर्मेशन.
सो सर्च इंजन टाइप कर दो, लेकिन तुम वर्ड टाइप करो, वो तुम्हें वेबसाइट ही देगा, मतलब 8-10 वेबसाइट दे देगा जिसमें तुम्हारा इंफॉर्मेशन फुलफिल होगा। जैसे कि तुम्हें शॉपिंग करना चाहते हो लेकिन शॉपिंग के लिए वेबसाइट मालूम नहीं, तो गूगल सर्च में जाके टाइप कर दो शॉपिंग साइट, तो वो www.amazon.com, www.flipkart.com, देन और बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, नापतोल, स्नैपडील, वो दे देगा। दैट मीन्स वेब it provide the web address, that means without web address you cannot do anything, तो at least require a web address। तो तुमने साइट गूगल से डाउनलोड कर गूगल सर्च में मार दिया, तो उसने वैसे लिखा http://www.amazon.com, तो ये एक वेब एड्रेस, एक वेबसाइट का एड्रेस मैंने ले लिया। इट इज द नेम, इट इज द वेबसाइट, इट इज द वेबसाइट, इट इज द वेबसाइट। ओके, सो इन दिस वेबसाइट व्हाट आर द टर्म्स? ओके, नाउ द टॉपिक इज कमिंग अबाउट योर टर्मिनोलॉजी, इंटरनेट टर्म्स। हम सबको मालूम है ये एक वेब एड्रेस है, ये एक वेबसाइट है, लेकिन उसका जो ईच एंड एवरी पार्ट है उसे हम क्या बोलते हैं? उसका जो ईच एंड एवरी पार्ट है उसे हम क्या बोलते हैं? वो सब पार्ट को तुम्हें पता होना चाहिए, तुम्हें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, एंड दिस इज कॉल्ड योर इंटरनेट टर्मिनोलॉजीज, इंटरनेट टर्म्स। ओके, तो जैसे कि पहले लिखा है HTTP, हम वहीं से शुरू करते हैं। तो उसके लिए हम थोड़ा सा फिर से बैक जाएंगे हमारे डिस्कशन में, जो मैंने क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पढ़ाया था कि when you type anything on the client machine, that data will be sent to the server, and when any result is getting from the server, that is travel again into the client machine। तो क्लाइंट मशीन से सर्वर, सर्वर से क्लाइंट, जो डाटा ट्रांसफर होता है वो डाटा ट्रांसफर करता कौन है? वो डाटा ट्रांसफर करता कौन है? तो डाटा ट्रांसफर करने के लिए we require a protocol, we require a protocol। A protocol is there which is responsible to transfer the data from client machine to server machine, server machine to client machine। It is a protocol, it is a set of rules and regulation। Protocol is a set of rules and regulation which is responsible for transferring the data from client machine to server machine and server machine to client machine। Okay, so that is called protocol, and protocol send the data in the form of energy packet, energy or data packet। ओके, ज्यादातर डाटा पैकेट भी बोलते हैं स्टूडेंट, तुम लोग को समझो इसलिए मैंने एनर्जी पैकेट बोला ये, और बुक में कहीं एनर्जी पैकेट नहीं लिखा है, डाटा पैकेट लिखा है। तो टर्मिनोलॉजी को समझने के लिए हम एनर्जी पैकेट बोलते हैं, अदरवाइज इट इज नोन एज डाटा पैकेट, इन द फॉर्म ऑफ डाटा पैकेट्स, बिकॉज द होल डाटा इज नॉट ट्रांसमिटेड फ्रॉम द क्लाइंट टू सर्वर। जैसे पूरा डाटा क्लाइंट से सर्वर को ट्रांसमिट नहीं होता, दैट डाटा इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल स्मॉल डाटा पैकेट्स, स्मॉल स्मॉल डाटा पैकेट्स, एंड they travel into the air and they reach at the destination, and at the destination the data are reassembled, combined together and form the general message or general request। So you must require a protocol when you type a website। So we are using here, the protocol is HTTP। Here we are using the protocol as a HTTP, मतलब hypertext transfer protocol। Hypertext transfer protocol, this is your HTTP। This protocol is generally used in our protocol, but students, there are another protocols are there, yes, there are another protocols are there, such as IP, internet protocol, ये भी और एक प्रोटोकॉल है। TCP,
ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल और ट्रांजैक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल। FTP, file transfer protocol. That means student, like different companies having different byte, like that different protocols are there, different techniques are there to send the data from the client machine to server machine. But generally we are using the HTTP because it is faster, it sends audio, video, graphics, all are. But other protocols are either slow or they does not support the audio video, like your FTP. FTP is very fast, but it only transfer the file. FTP, file transfer protocol. It does not transfer the graphics file, audio file, video file. So for secure, for fast, and to send all kinds of data, we are using the HTTP protocol, hypertext transfer protocol. Okay? तो और भी तुम लोगों ने देखा होगा, कभी कभी HTTP में S लिखा होता है, HTTPS, that is the hypertext transfer protocol, but it is secure. क्योंकि जब हम कोई वेबसाइट बनाते हैं वो सिक्योर होता है और नॉट सिक्योर होता है, तो वो इंडिकेट करता है HTTP are the not so secure websites, but when you write HTTPS, that is secure website, that is a very secure website. Okay? तो हम जब भी कोई वेबसाइट बनाते हैं तो हम ट्राई करेंगे सिक्योर वेबसाइट ही बनाने के लिए। अगर किसी ने तुम्हें वेबसाइट बना के दिया है, तुमसे पैसा लिया है, अगर वो HTTP हो तो तुम्हें पता चल जाएगा दिस इज नॉट सिक्योर। ओके, उसके हिसाब से कम पैसा लिया होगा और सिक्योरिटी के लिए हम ज़्यादा एक्सपेंस करना पड़ता है। ओके, जहाँ सिक्योरिटी चाहिए। ओके, दिस इज अबाउट योर फर्स्ट टर्मिनल, दैट इज योर प्रोटोकॉल HTTP। देन लिखा गया है जैसे कॉलन स्लैश स्लैश। तो व्हाट इज दिस कॉलन स्लैश स्लैश? जैसे कि मैंने अगर मेरे एक स्टूडेंट को बोल दिया कि स्टूडेंट आई हैव ए एड्रेस, प्लीज रीच देयर। ओके, एग्जांपल दे दिया टाटा बेन स्क्वायर, लेकिन वो बाहर से आया है, अदर स्टेट से आया है, उसे पता ही नहीं है टाटा बेन स्क्वायर कहाँ पे है, तो वो कैसे जाएगा? तो वो पूछ के जाएगा, दैट मीन्स द पाथ, द वे। तो किसी को पूछा टाटा बेंच कहाँ है, तो बोलेगा वो स्ट्रेट जाओ, वो कोई बोलेगा राइट जाओ, लेफ्ट जाओ, राइट जाओ, और एक 5 शॉप आ गया, दैट इज द टाटा बेंच स्क्वायर। ओके, सो लाइक दैट यू send the data through protocol, but how the protocol will reach the destination point? It start from the source point, but how the protocol will send to the destination point? How will it find the path? So this is used as a path. This colon slash slash is as a path. It indicates the path of the website. It provides the path for the reach the data at the destination point. Okay. So this is used as a path. Then you write www. जैसे कि मैंने बोला कि राइट लेफ्ट बोल दिया, लेकिन वो पता कैसे चलेगा ये टाटा बेंच स्क्वायर ना सर, ये मेरा 500 एक लैंडमार्क है। लाइक दैट www is your landmark. That means all the data are sent to the, all the requests are sent to the www, World Wide Web. अब तुम बोलोगे सर क्यों www? तो इसका आंसर मैंने पहले क्लास में ही दे दिया है स्टूडेंट, बिकॉज द www consortium, World Wide Web Consortium W3C is responsible for maintaining and developing the website. एक वेबसाइट डेवलप करने के लिए, एक वेबसाइट मेंटेन करने के लिए W3C is responsible. So the path indicated www. तो हमारा जो रिक्वेस्ट है वो प्रोटोकॉल कहाँ पहुंचाएगा? www में पहुंचाएगा। तो प्रोटोकॉल पहुंचाएगा, कॉलन स्लैश स्लैश उसे पाथ देगा एंड www में जाके वो पहुंचेगा, रीच होगा। ओके, तो www में हम पहुंच गए। लेकिन सर ये डॉट क्या है? डॉट, ऐसे हम डॉट देते हैं, ऐसे हम पहुंच तो गए, लेकिन अगर 500 में पहुंच गए, किसी के घर जाए तो बेल तो बजाना पड़ेगा ना, ऐसे बेल प्रेस करना पड़ेगा, बुलाना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा। तो डॉट इज नोन एज द कनेक्टर।
बिकॉज www के पास तो पहुंच गया डाटा, लेकिन कनेक्ट तो होना पड़ेगा ना, क्योंकि देयर आर थाउजेंड्स ऑफ वेबसाइट्स एंड थ्रू थाउजेंड्स ऑफ वेबसाइट वी कंटेन वन वेबसाइट एंड दैट इज योर www dot. The dot is known as a connector. It connect your request to the particular सर्वर मशीन और सॉफ्टवेयर और रेस्पॉन्स, जहां तुम्हें पहुंचना है वहां पर्टिकुलर तुम्हें पहुंचाएगा. ओके, तो http www डॉट हो गया. देन और कुछ नहीं था और ज्यादा कुछ है नहीं. उसके बाद हमने लिखा है Amazon. तो Amazon इज द वेबसाइट नेम. जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन अपना वेबसाइट क्रिएट करता है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन अपना वेबसाइट बनाता है, तो वो उसका कुछ नाम देता है. तो दैट इज द नेम ऑफ द वेबसाइट. वो वेबसाइट का नाम होता है. तो वो वेबसाइट के नाम के हिसाब से हमें पता चलता है कि हमने कौन सा रिक्वेस्ट भेजा है. तो वो वहां पहुंच गया और उसे सिलेक्ट कर लिया. देन .com. Then what is the .com? डॉट तो मालूम है सबको, कनेक्ट करने. कॉम क्या है ना? इट इज द डोमेन नेम. इट इज द डोमेन नेम. ऑल ऑफ यू नो दैट. व्हाट इज डोमेन नेम? सर, डोमेन नेम इंडिकेट द टाइप ऑफ द वेबसाइट. टाइप ऑफ द वेबसाइट. जैसे कि कोई स्टूडेंट जब एग्जाम देने जाता है तो उसे पूछा जाता है आर यू रेगुलर, आर यू एक्स रेगुलर और आर यू सप्लीमेंटरी. सो लाइक दैट जब भी तुम कोई वेबसाइट बनाते हो तो तुम्हें पूछा जाता है कि इन व्हिच पर्पस यू आर यूजिंग द वेबसाइट. कौन से पर्पस में तुम अपना वेबसाइट डेवलप करना चाहते हो. तो तुम मुझे सर कौन से पर्पस है ना? बहुत सारे पर्पस है. जैसे कि एजुकेशन पर्पस, एजुकेशनल. कोई स्कूल कॉलेज अगर अपना खुद का वेबसाइट बनाएगा तो वो एजुकेशन पर्पस में .edu यूज करेगा. .edu. अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि एनजीओ होता है, अगर वो उसका अपना खुद का वेबसाइट बनाएगा तो उसे बोलेंगे .org. ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ जैसे कि बीइंग ह्यूमन, ये सब अगर अपना खुद का वेबसाइट बनाएंगे तो वो अपने वेबसाइट का जो एड्रेस है, मतलब डोमेन नेम है .org देंगे. वैसे ही मिलिट्री के लिए .mi. ऐसे बहुत सारे पर्पस के लिए, डिफरेंट पर्पस के लिए हम डिफरेंट वेबसाइट्स बनाते हैं. ओके, बट वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इज आवर .com. One of the most popular is our .com. Why? Because it is used as business purpose. It is used as business purpose. It is used as commercial purpose. So for commercial purpose, so for business purpose, when we develop any website, that is called our .com domain name, because it is purely business oriented. Okay. So now you finally get the address as http://www.google.com. जैसे हम ऐसे टाइप करके एंटर मारते हैं, इसे और कुछ नंबर से लिखा जाता है. जो वो नंबर्स लिखा जाता है तो उसे बोलते हैं पूरा को, इस पूरे वेब एड्रेस को बोलते हैं URL. Because every website having a unique identity, unique address, and that unique address or that unique identity is treated as web address, and that is called URL. Uniform Resource Locator. URL मतलब Uniform Resource Locator. Okay, this is called Uniform Resource Locator. This is called URL. जिससे भी तुम अपना वेबसाइट का लिंक भेजोगे तो ये URL ही जाएगा. जैसे हम गूगल मीट में क्लास करते हैं तो हमारा लिंक जाता है, दैट इज कॉल्ड URL. यूनिक आइडेंटिटी, यूनिक एड्रेस, यूनिक वेब एड्रेस. ओके, सो whenever you want to send any link, you send the URL only, but the URL contain these types of parts. Okay, so this is all about your on the features of internet, understanding of internet, and your terminologies or terms used in the internet. Next class we are using such more parts of internet.
and with modem, etc. and etc. In the next video I will upload that things. Okay, so till then, goodbye. Thank you for your watching and cooperate with us. And obviously all of you know that after watching this video or before watching this video, you must subscribe. Don't forget to subscribe it. Okay, and like also the video. And if you have any doubt, ask on my WhatsApp number. Okay, regarding this video, or when you are taking online class, you can ask the doubts. Okay, ठीक है. So we will meet in the next video. Thank you. Goodbye, students.